নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। আরো বারো নিয়ে আমি সুদীপ্ত রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। আরো বারো সুদীপ্তর সঙ্গে আমি রয়েছি স্বর্ণালী। আর প্রথমে যে খবরের দিকে নজর রাখবো স্বর্ণালী, আরিয়াদহে যে ঘটনা অর্থাৎ জয়ন্ত সিং যে নাম উঠে এসেছিল, সেই গণপিটুনির ঘটনা, মা এবং ছেলেকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল। আর এবার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে 6 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একদমই, এবং সেই 6 জনকে গ্রেপ্তার করেছে যেমনটা জানা যাচ্ছে বেলঘরিয়া থানার পুলিশ। আপনাদের জানিয়ে রাখি, আমরা বারংবার দেখছি রাজ্যে একের পর এক গণপিটুনির ঘটনা সামনে আসছে। ইতিমধ্যেই আপনাদের জানিয়ে রাখি সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আরো বেশি পুলিশকে যথেষ্ট সচেতনতা বাড়ানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এবং যেই ঘটনার দিকে আমরা নজর রেখেছি সুদীপ্ত, তুমি যেমনটা জানালে যে আরিয়াদহে কিন্তু মা ও ছেলেকে যে গণপিটুনির ঘটনা সামনে এসেছে, সেই ঘটনাতেই এবার সিসিটিভি যে ফুটেজ রয়েছে সেই ফুটেজ দেখে কিন্তু ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে 6 জনকে এবং তাদের গ্রেপ্তার করেছে বেলঘরিয়া থানার পুলিশ। একদমই তাই, কখনো চোর সন্দেহে, কখনো ডাইনি সন্দেহে এই গণপিটুনির ঘটনা কিন্তু দিকে দিকে বেড়ে উঠেছে। তুমি দেখেছো যে বউবাজারের যে ছাত্র আবাসন রয়েছে, সেই ছাত্র আবাসনেও কিন্তু এই গণপিটুনির ঘটনা উঠে এসেছিল। ইরশাদ আলমকে মারধর করা হয়েছিল এবং তারপরে সল্টলেকেও এই ঘটনা উঠে এসেছিল। আর এবার আরিয়াদহের যে ঘটনা, সেখানে মা এবং ছেলেকে মারধর করা হয়েছে এবং দুজনেই তারা চিকিৎসাধীন এই মুহূর্তে রয়েছেন। আর এই মুহূর্তে যে খবর উঠে আসছে তা একদমই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মদন মিত্র, কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র, তিনি কালকেই গিয়েছিলেন, অর্থাৎ গতকালই গিয়েছিলেন সেই মা এবং ছেলেকে দেখা করতে হাসপাতালে, এবং তারপর সিসিটিভি ফুটেজ দেখার পর 6 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই ঘটনায়। একেবারেই সুদীপ্ত, তুমি যেমনটা জানাচ্ছিলে যে আমরা দেখছি রাজ্যে গত কয়েকদিন ধরেই কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় এই ছেলে ধরা সন্দেহে বা চোর সন্দেহে এই মারধরের ঘটনা রীতিমতো করে বেড়ে গিয়েছে এবং তা নিয়ে তোলপাড় হয়েছে রীতিমতো রাজ্য। এবং একই সঙ্গে কিন্তু শাসক দল এবং বিরোধী দল তাদেরও মধ্যে যে রাজনৈতিক তরজা, তাও কিন্তু রীতিমতো তুঙ্গে। এবং তোমাকে জানিয়ে রাখি, ইতিমধ্যেই যেহেতু ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় সেখানে গণপিটুনি সংক্রান্ত আইন নতুন এসেছে এবং সেইভাবেই কিন্তু এই যে গণপিটুনির যে ঘটনা, সেই ঘটনাকে মূলত সেই ঘটনার ক্ষেত্রে যারা শাস্তি পাবে, অর্থাৎ যারা অপরাধী, সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের সাজা যেন যথাযথ হয় সেদিকটাও কিন্তু যথেষ্ট আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই আইনেও। এবং যে ঘটনা আপনাদের সামনে এই মুহূর্তে তুলে ধরছি আমরা, আরিয়াদহের ঘটনা, আরিয়াদহে মা ও ছেলেকে মারধরের অভিযোগ সামনে আসে এবং ইতিমধ্যেই তারা হাসপাতালে রয়েছে। এবং এই ঘটনাতেই সিসিটিভি যে ফুটেজ সামনে এসেছে, সেই সিসিটিভি ফুটেজ মারফত গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিন্তু 6 জনকে, এবং সেই 6 জনকে গ্রেপ্তার করেছে বেলঘরিয়া থানার পুলিশ। তবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই জয়ন্ত সিং এবং আরো দুজনের নাম যারা উঠে এসেছিল, সেই জয়ন্ত সিং এবং এই দুজনকে কিন্তু এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা যায়নি। তার পরিবর্তে 6 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে বেলঘরিয়া থানার পুলিশ। একদমই, যে মূল অভিযুক্ত তুমি যেমনটা বললে সুদীপ্ত, জয়ন্ত সিং, তাকে কিন্তু এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা যায়নি, যদিও পর্যন্ত এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে 6 জনকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজ্যে একের পর এক মারধরের ঘটনা বা ছেলে ধরার কাণ্ডের যে ঘটনা, সেই ঘটনা কিন্তু বেড়ে চলেছে। তুমি যেমনটা কিছুক্ষণ আগে বলছিলে যে কলকাতা, খাস কলকাতায় বউবাজারের হোস্টেলে আবাসিকদের কাছে মারধরের ঘটনা, গণপিটুনির জেরে কিন্তু নিহত হন ইরশাদ আলম। শুধুমাত্র তাই নয়, তারপরে আমরা দেখেছি সল্টলেক, তারপরে ঝাড়গ্রাম, তারকেশ্বর, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই কিন্তু এই মারধরের ঘটনা সামনে এসেছে। এবং আমরা কিছুদিন আগেও দেখেছি সুদীপ্ত যে উত্তর 24 পরগনার বনগা থেকে শুরু করে ব্যারাকপুর, বারাসত, সেখানেও ছেলে ধরা সন্দেহে কিন্তু মারধরের ঘটনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। এবং এবার যে ঘটনার দিকে আমরা নজর রেখেছি তা হলো আরিয়াদহে মা ও ছেলেকে মারধরের ঘটনা। একদমই তাই, মূলত যে এই ঘটনা কেন ঘটেছে সেই জিনিসের দিকে আমাদের নজর থাকবে, অর্থাৎ ঠিক কী কারণে এই ঘটনাটি ঘটলো সেদিকে যেমন আমাদের নজর থাকবে, ঠিক তেমনই এই জয়ন্ত সিং, তাকে এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা যায়নি। 6 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি জয়ন্ত মজুমদার। জয়ন্ত, ঠিক কি জানতে পারছো? 6 জনকে এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে, তবে এখনো পর্যন্ত অবশ্যই আমরা সুদীপ্ত আমাদের প্রতিনিধির কাছে তো যাবই, কিন্তু তার পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে রাখি যে আরিয়াদহে যে মা ও ছেলেকে মারধরের ঘটনা, সেই ঘটনাতে কিন্তু এখনো পর্যন্ত 6 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যদিও এখনো পর্যন্ত যে মূল অভিযুক্ত অর্থাৎ জয়ন্ত সিং, তিনি কিন্তু এখনো পর্যন্ত পলাতকই রয়েছে। একদমই তাই, এবং 6 জনকে এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই ঘটনায়। মূলত সিসিটিভি ফুটেজ দেখে এই 6 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি জয়ন্ত মজুমদার। জয়ন্ত, ঠিক এখনো পর্যন্ত 6 জনকে গ্রেপ্তারের কথা উঠে আসছে, তবে এখনো অধরা রয়েছেন। জয়ন্ত, কি বলবে?
দেখো, গতকাল কিন্তু বিধায়ক মদন মিত্র কিন্তু ওই আরিয়াদহ স্পোর্টিং ক্লাব যে অঞ্চলে কিন্তু গোটা ঘটনার বিষয়টি ঘটে, অর্থাৎ সায়নদীপ পাঁজা এবং তার মা বুবুন পাঁজাকে দুষ্কৃতীরা যেভাবে মারধর করা, বেধড়ক ভাবে মারধর করা, সেখানে কিন্তু মদন মিত্র যান এবং মদন মিত্রকে ঘিরে কিন্তু বিক্ষোভ দেখান এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা যেটা দাবি করতে থাকেন যে এই যে 6 জন যারা পুলিশ ইতিমধ্যে যাদেরকে গ্রেফতার করেছে, তারা কিন্তু আসল কারিগর নয়। এই ঘটনার মদতে ছিল জায়েন্ট সিং জঙ্ঘা। এই যে বারবার নাম উঠে আছে জায়েন্ট সিং, কে এই জায়েন্ট সিং? এতটা দাপট কি করে হলো এলাকায়? এর আগে কিন্তু তিনি একবার জেলও খেটেছেন, তারপরে জেল থেকে বেরিয়ে কিন্তু তিনি এলাকায় যেভাবে দাপট চালিয়েছেন সেটা অভাবনীয়। তার দাপট কিন্তু অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে এবং এলাকার যারা মানুষ জায়েন্ট সিং এর ভয়ে কিন্তু ইতিমধ্যেই বিপর্যস্ত বলা যেতে পারে। অর্থাৎ জায়েন্ট সিং এর কিন্তু বিভিন্ন রকম সিন্ডিকেট চলে এবং তার পাশাপাশি মধুচক্রের ব্যবসা চলে এবং তালতলা স্পোর্টিং ক্লাবের তিনি সদস্য আরিয়াদহের, এমনটাই কিন্তু জানা যাচ্ছে। এবং স্থানীয় মানুষেরা কিন্তু জায়েন্টের নাম শুনলে কিন্তু ভয়ে গুটি ছুটে দিচ্ছে। তার কারণ তোলাবাজি চালায় এই জায়েন্ট সিং এবং তার দলবল মিলে আরিয়াদহ অঞ্চলে। এবং সুদীপ্তদা, তোমাকে জানানোর চেষ্টা করবো, গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত আরিয়াদহের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু ইতিমধ্যে জায়েন্টের বিরুদ্ধে কিন্তু পোস্টার পড়েছে। সেখানে যে দুষ্কৃতী জায়েন্ট সিং জঙ্ঘা, এই যে বারবার যে নামগুলো উঠে আসছে, তারা কেন এখনো অধরা রয়েছে? তাদেরকে অবিলম্বে দুষ্কৃতী ধরতে হবে এবং দুষ্কৃতী তাণ্ডব থেকে আরিয়াদহকে মুক্তি দিতে হবে, এমন দাবিতে কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়ে কিন্তু পোস্টার চারিদিকে কিন্তু ইতিমধ্যেই মেরে দিয়েছে। এবং মদন মিত্র তিনি যেটা দাবি করেছেন যে এই জায়েন্ট এত পাওয়ার পেয়েছে, তার কারণ হচ্ছে কিছু ঠিকাদার, কিছু যারা ব্যবসায়ীরা রয়েছেন তারা, এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে কিছু প্রমোটার। এই প্রমোটার রাজ কিন্তু দমন করতে হবে কামারহাটি থেকে, এমনটাই নিদান দিচ্ছেন বিধায়ক মদন মিত্র। বিধায়ক মদন মিত্র বারবার বলছেন এই প্রমোটাররা জায়েন্টের পেছনে রয়েছে, সেই জন্য জায়েন্ট সিং এতটা দাপুটে সঙ্গে কাজ চালাচ্ছে, আরিয়াদহে তোলাবাজির ঘটনা চালাচ্ছে। তবে জায়েন্ট সিংকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে কিন্তু ইতিমধ্যেই আরিয়াদহ যে অঞ্চল, সেই অঞ্চলের মানুষেরা কিন্তু তারা দাবি তুলছেন, তারা সোচ্চার হচ্ছেন জায়েন্ট সিং এর গ্রেফতারের অনেক দাবিতে। ধন্যবাদ জয়ন্ত তোমাকে। এই মুহূর্তে 6 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তবে জায়েন্ট সিং যে মূল অভিযুক্ত তাকে গ্রেফতারের দাবিতে এবার আরিয়াদহে পড়েছে পোস্টার। তারা দাবি তুলছেন তাকে গ্রেফতারের জন্য। একদমই, অবশ্যই। তার পাশাপাশি আমরা যে খবরের দিকে নজর রাখবো সুদীপ্ত, এবার কিন্তু নজর রাখবো চোপড়ার দিকে। চোপড়া কাণ্ডে গ্রেপ্তার আরো একজনকে গ্রেপ্তার করে ইসলামপুর থানার পুলিশ। এবং আজ ধৃতকে ইসলামপুর কোর্টে পেশ করা হবে জানিয়েছেন ইসলামপুর পুলিশ এবং পুলিশ জেলার এসপি জবি থমাস বলে যে এসপি রয়েছেন তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে তাকে আজকে আদালতে পেশ করা হবে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, চোপড়ার এই ঘটনায় যে যার নাম উঠে এসেছিল সেই নামকে কেন্দ্র করে এবার ইসলামপুর কেন্দ্রে পেশ করা হবে বলে জানিয়েছে ইসলামপুর পুলিশ জেলার এসপি জবি থমাস। একদমই সুদীপ্ত, আমরা দেখেছি এর আগে তুমি যেমনটা বলছিলে যে জেসিবি অর্থাৎ জেসিবি ওরফে তাজমুল, তাকে কিন্তু এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আপনাদের জানিয়ে রাখি 30শে জুন যে ঘটনা ঘটেছিল, যেই সামনে এসেছিল যে ভাইরাল ভিডিও আমরা দেখেছি, সেখানে দেখা যাচ্ছে এক যুবক যুবতীকে কিন্তু মারধর করার অভিযোগ সামনে এসেছিল এবং সেখানে মূলত সালিশি সভায় সেই ঘটনা আমরা দেখেছিলাম, সেই ভাইরাল হয়েছিল সেই ভিডিও। এবং তারপরে জেসিবি বলে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সেই চোপড়া কাণ্ডে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরো একজনকে। এ বিষয়ে আমরা কথা বলবো, ফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি বিক্রমাদিত্য বিশ্বাস। বিক্রমাদিত্য, চোপড়া কাণ্ডে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরো একজনকে, তার ঠিক কি পরিচয়, কি জানা যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত, এই ঘটনা সম্পর্কে কি আপডেট রয়েছে? দেখো, যে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার নাম আমিরুল ইসলাম ওরফে বুধুয়া। তার বাড়ি চোপড়া থানার নাককাঠি এলাকায় এবং সে সালিশি সভায় এখানে কিন্তু দাঁড়িয়েছিল এবং দেখছিল ঘটনাটা। সেই অপরাধেই কিন্তু তাকে ধরা হয়েছে বলে সে জানিয়েছে এবং তাকে আজকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হচ্ছে। বিক্রমাদিত্য, আমরা দেখেছি এই ঘটনায় কিন্তু ইতিমধ্যেই যেমন হামিদুর রহমান অর্থাৎ চোপড়ার বিধায়ক, তাকে যেমন শোকজ করা হয়েছে, তার পাশাপাশি আইসিকিউ শোকজ করা হয়েছে এবং রাজনীতির রঙও যে এই ঘটনায় লেগেছে তা কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আরো যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার সঙ্গে কি রাজনীতির সে কোন রাজনৈতিক দল করে সেই কোনো পরিচয় জানা গেছে এখনো পর্যন্ত? দেখো, সেরকম ভাবে পরিচয় জানা যায়নি, তবে এরা সবাই তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক, সেটা কিন্তু হামিদুর রহমান নিজেও বলেছেন, কারণ তিনি ওখান থেকে প্রায় 1 লক্ষ লোকে লিড দিয়েছেন লোকসভা নির্বাচনে। সেখানে চোপড়ার যত মানুষ রয়েছেন তারা সবটাই মোটামুটি তৃণমূল কংগ্রেসের মানুষ এবং সেইখানে যে সভা হচ্ছিল সেই সভায় কিন্তু সবাই তৃণমূল কংগ্রেসেরই মানুষ ছিল বলে একদমই বিক্রমাদিত্য, অবশ্যই বেশ কিছু অভিযোগ সামনে আসছে, অবশ্যই সেদিকে আমাদের নজর থাকবে। আপাতত ধন্যবাদ তোমায়। আর এই মুহূর্তে ইসলামপুর পুলিশ জেলার এসপি জবি থমাস তিনি ঠিক কি বলেছেন শোনাবো।
গতকাল রাত্রিবেলা আরেকজনকে অ্যারেস্ট করেছে, আজ কি কোর্টে তোলা হবে। তার নাম ঠিকানা স্যার জানা যাবে? নাম তো আজ কি কোর্টে তুলে যাচ্ছে, তুলে আচ্ছা। ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। গতকাল রাত্রিবেলা আরেকজনকে অ্যারেস্ট করেছে, আজ কি কোর্টে তোলা হবে। তার নাম ঠিকানা স্যার জানা যাবে? নাম তো আজ কি কোর্টে তুলে যাচ্ছে, তুলে আচ্ছা। আর এই মুহূর্তে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সেদিকে নজর রাখবো আমরা। छाया कर दी जाए, कैसे उसको ब्लैकआउट किया जाए, इसकी कोशिश हुई। लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि आखिर तक पराजय भी स्वीकार हो रहा है और दबे मन से, कम मन से विजय भी स्वीकार हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं करते थे, लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं, वो जो कहते थे उनके मुंह में घी शक्कर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था 1/3 सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है। 1/3 हुआ है, 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता। आदरणीय सभापति जी, 10 वर्षों के अखंड एकनिष्ठ अविरत सेवा भाव से किए हुए कार्य को देश की जनता ने जी भर करके समर्थन दिया है। देश की जनता ने आशीर्वाद दिए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में देशवासियों की विवेक बुद्धि पर गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा को परास्त कर दिया है। देश की जनता ने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है। भ्रम की राजनीति को देशवासियों ने ठुकराया है और भरोसे की राजनीति पर विजय की मोहर लगा। आदरणीय सभापति जी, संविधान के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस सदन के लिए भी ये पड़ाव विशेष है, क्योंकि इसे भी 75 साल हुए हैं और इसलिए एक सुभग संयोग है। आदरणीय सभापति जी, मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस देश के सार्वजनिक जीवन में, जिनके परिवार में कोई गांव का सरपंच भी नहीं रहा है, गांव का प्रधान भी नहीं रहा है, राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है, लेकिन आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच करके देश की सेवा कर रहे हैं। और उसका कारण बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उसने हम जैसे लोगों को अवसर दिया और मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनको
बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण यहाँ तक आने का अवसर मिला है और जनता जनार्दन ने उस पर मोहर लगाई, तीसरी बार आने का मौका मिल गया। आदरणीय सभापति जी, संविधान हमारे लिए ये कोई आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मात्र नहीं है, हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मूल्यवान है। और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के नीति निर्धारण में, कार्यकलापों में हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है, दिशा दर्शक का काम करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे याद है मैंने जब लोकसभा में हमारी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, तो मैं हैरान हूं जो आज संविधान की प्रत लेकर के कूदते रहते हैं, दुनिया में लहराते रहते हैं, उन लोगों ने विरोध किया था 26 जनवरी तो है, तो संविधान दिवस क्यों लाए। और आज संविधान दिवस के माध्यम से, आज संविधान दिवस के माध्यम से देश के स्कूल कॉलेजेस में संविधान की भावना को, संविधान की रचना में क्या भूमिका रही है, देश के गणमान्य महापुरुषों ने संविधान के निर्माण में किन कारणों से कुछ चीजों को छोड़ने का निर्णय किया, किन कारणों से कुछ चीजों का स्वीकार करने का निर्णय किया, इसके विषय में हमारे स्कूल कॉलेजेस में विस्तार से चर्चा हो, निबंध स्पर्धाएं हो, चर्चा सभाएं हो, एक व्यापक रूप से संविधान के प्रति आस्था का भाव जगे और संविधान के प्रति समझ विकसित हो। देशवासियों के लिए आने वाला पूरा कालखंड संविधान हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे, इसके लिए हम कोशिश करते रहे हैं। और अब जब 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हमने इसे एक जन उत्सव के रूप में राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाने का तय किया और इससे देश के कोने कोने में संविधान की भावना को, संविधान के पीछे जो मकसद है उसके विषय में भी देश को अवगत कराने का प्रयास है। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हमें तीसरी बार जो अवसर दिया है, वो अवसर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस यात्रा को मजबूती देने के लिए, इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हमें देश के कोटि कोटि जनों ने आशीर्वाद दिए हैं। आदरणीय सभापति जी, ये चुनाव 10 वर्ष की सिद्धियों पर तो मोहर है ही, लेकिन ये चुनाव भविष्य के संकल्पों के लिए भी देश की जनता ने हमें चुना।
क्योंकि देश की जनता का एकमात्र भरोसा हम पर होने के कारण आने वाले सपनों को, संकल्पों को सिद्ध करने के लिए हमें अवसर दिया। आदरणीय सभापति जी, देश भली भांति जानता है, देश ने पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 10 नंबर से 5 नंबर पर पहुंचाने में सफलता पाई और जैसे जैसे नंबर निकटता की सिद्धि की ओर पहुंचता है, एक की तरफ पहुंचता है, तो चुनौतियां भी बढ़ती हैं और कोरोना के कठिन कालखंड के बावजूद, संघर्ष की वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद, तनाव के वातावरण के बावजूद भी हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 10 नंबर से आज विश्व में 5 नंबर पर पहुंचाने में सफल। इस बार देश की जनता ने हमें रिकॉर्ड में 5 नंबर से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंचाने के लिए जनादेश दिया है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश की जनता ने हमें जो जनादेश दिया है, हम भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के टॉप 3 में पहुंचा के रहेंगे। जिन व्यवस्थाओं की, जिन सुविधाओं की, जिस प्रकार के गवर्नेंस की आवश्यकताएं होती हैं, हम इन मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन का युग के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के हैं। आने वाले 5 वर्ष गरीबी के खिलाफ, गरीबों की लड़ाई, और मैं मानता हूं गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता है, तो गरीबों की गरीबी के खिलाफ की लड़ाई सफलता को प्राप्त करती है। और इसलिए आने वाले 5 साल गरीबी के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक वर्ष है और यह देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में विजयी होकर के रहेगा। ये पिछले 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, जब देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा तो इसका लाभ, इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। विकास के विस्तार के अनेक अवसर उपलब्ध होने वाले हैं और इसलिए जब हम दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे तब
भारत के हर स्तर पर सकारात्मक प्रभाव तो होगा, लेकिन वैश्विक परिवेश में अभूतपूर्व प्रभाव पैदा होने वाला है। मैंने पहले भी कहा है कि भारत के विकास यात्रा में 4 प्रमुख स्तंभ हैं। उसका सशक्तिकरण, उनको अवसर, ये बहुत बड़ी ताकत देने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश के किसान, हमारे देश के गरीब, हमारे देश के युवा और हमारे देश की नारी शक्ति, आदरणीय सभापति जी, हमने हमारी विकास यात्रा में हमारा जो फोकस है उसको हमने रेखांकित किया है। आदरणीय सभापति जी, यहाँ भी कई साथियों ने खेती और किसानी को लेकर के हर एक ने विस्तार से अपने विचार रखे हैं और अनेक बातें सकारात्मक रूप से भी रखी है। मैं किसानों को लेकर सभी सदस्यों को और उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। बीते 10 वर्ष में हमारी खेती हर प्रकार से लाभकारी हो, किसान को लाभकारी हो, उस पर हमने हमारा ध्यान केंद्रित किया है। अनेक योजनाओं से उसको हमने ताकत देने का प्रयास किया है। चाहे फसल के लिए ऋण हो, लगातार नए बीज किसानों को उपलब्ध हो, आज की कीमत उचित हो और फसल बीमा का लाभ पहले की सारी मुसीबतें दूर कर देते किसानों को सरलता से उपलब्ध हो। चाहे एमएसपी पर खरीद की बात हो, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके किसानों को लाभ दिया। एक प्रकार से बीज से बाजार तक हमने किसानों के लिए हर व्यवस्था को बहुत माइक्रो प्लानिंग के साथ मजबूती देने का भरपूर भरसक प्रयास किया है और व्यवस्था को हमने चाक चौबंद किया है। आदरणीय सभापति जी, पहले हमारे देश में छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड लोन पाना करीब करीब न के बराबर था, बहुत मुश्किल है। जबकि उनकी संख्या सबसे अधिक आज हमारी नीतियों के कारण, किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार के कारण, आदरणीय सभापति, हमने किसानी को एक व्यापक स्वरूप में देखा है और उस व्यापक स्वरूप में हमने किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का हमने लाभ मुहैया कराया है। और इसके साथ हमारे
हमने काम किया। आदरणीय सभापति, कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में एक बार किसानों की कर्ज माफी की बहुत डोल पिटे गए और एक बढ़ चढ़ करके बातें बता करके किसानों को गुमराह करने का भरसक प्रयास किया गया था। और 60,000 करोड़ की कर्ज माफी, उसका इतना हल्ला मचाया था और एक अनुमान था तो उसके लाभार्थी करीब देश के 3 करोड़ किसान थे। सामान्य गरीब छोटे किसान का तो उसमें नामो निशान नहीं था। जिसको सबसे जरूरत थी इसकी उनकी योजना में कोई परवाह नहीं थी और उन तक कोई लाभ पहुंच भी नहीं पाया था। लेकिन आदरणीय सभापति जी, जब किसान कल्याण हमारी सरकार के हृदय में केंद्र में हो तो नीतियां कैसी बनती है, कल्याण कैसे होता है, लाभ कैसे पहुंचता है, उसका मैं इस सदन को उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ This conduct is not appropriate. 10 करोड़ किसानों को हुआ है Unparliamentary practice. और सिर्फ 6 साल में हमने Please take your seat. 3 लाख करोड़ रुपए To take their seats. हम किसानों को दे चुके It हैं। is unbecoming of your conduct. आदरणीय सभापति जी, Unbecoming of your conduct. आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ है। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया
कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इसे हाथ होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो जब आपने अपनी पूरी बात कह दी। माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कल देर रात तक चर्चा रखी गई, हर सदस्य को मौका दिया गया। इट इज एन ओकेजन where they have challenged Indian Constitution, they have outraged the spirit of Indian Constitution, they have disregarded the oath they have undertaken. मैं इस कुर्सी पर बैठकर इतना दुखी हूं कि भारत के संविधान का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा मजाक। भारत का संविधान हाथ में रखने की किताब नहीं है, जीने की किताब है। मैं आशा करता हूं कि वो आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, अपने दिल को टटोलेंगे और कर्तव्य पर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सभापति जी, आपकी वेदना मैं समझ सकता हूं। ये 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय दिया है, जो जनादेश दिया है, इसे ये पचा नहीं पा रहे हैं। और कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई, तो आज उनका वो लड़ाई लड़ने का भी हौसला नहीं था और इसलिए वो मैदान छोड़ करके भाग गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं तो कर्तव्य से बंधा हुआ हूं और न ही मैं यहां कोई डिबेट में स्कोर करने के लिए आया हूं। मैं तो देश का सेवक हूं, देशवासियों को मेरा हिसाब है। देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब देना, मैं उसे अपना कर्तव्य मानता हूं। आदरणीय सभापति जी, वैश्विक परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि फर्टिलाइजर के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ। हमने देश के किसान को मुसीबत में नहीं आने दिया और हमने करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपया फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी है और जो भारत के आजादी के इतिहास में सर्वाधिक है। और उसी का परिणाम है कि हमारे किसान को फर्टिलाइजर का इतना बड़ा बोझ उस तक हमने जाने नहीं दिया। सरकार ने अपने कंधे पर उसको उठा लिया है। आदरणीय सभापति जी, हमने एमएसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं, खरीद के भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले एमएसपी की घोषणा होती थी लेकिन किसानों से कुछ भी लिया नहीं जाता था, बातें बताई जाती थी। पहले की तुलना में अनेक गुना ज्यादा खरीदी कर करके
हमने किसानों को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, 10 वर्षों में हमने कांग्रेस सरकार की तुलना में धान और गेहूं किसानों तक 2.5 गुना अधिक पैसा पहुंचाया और हम आने वाले 5 साल सिर्फ इसी का इंक्रीमेंटल वृद्धि करके रुकना नहीं चाहते। हम नए नए क्षेत्रों को, उन कठिनाइयों का अध्ययन करके उसकी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, अन्न भंडारण का विश्व का सबसे बड़ा अभियान हमने हाथ लिया है और लाखों की तादाद में विकेंद्रित व्यवस्था के तहत अन्न भंडारणों की रचना करने की दिशा में काम चल पड़ा है। फल और सब्जी एक ऐसा क्षेत्र है, हम चाहते हैं किसान उस तरफ मुड़े और उसके भंडारण के लिए भी एक व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर के हमने देश सेवा की हमारी यात्रा को निरंतर विस्तार देने का प्रयास किया है। देशवासियों को गरिमापूर्ण जीवन देना, ये हमारी प्राथमिकता रही है। आजादी के बाद अनेक दशकों तक जिनको कभी पूछा नहीं गया, आज मेरी सरकार उनको पूछती तो है, उनको पूजती भी है। हमारे दिव्यांग भाई बहनों के साथ हमने मिशन मोड में उनकी कठिनाइयों को समझ करके माइक्रो लेवल पर उसको एड्रेस करने का प्रयास किया है और व्यवस्थाएं विकसित करने का प्रयास किया है ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें और कम से कम किसी का सहारा उनको लेना पड़े, इस दिशा में हमने काम किया है। आदरणीय सभापति जी, हमारे समाज में किसी न किसी कारणवश एक उपेक्षित वर्ग, यानी एक प्रकार से समाज में बार बार हरदूत होने वाला वर्ग, वो ट्रांसजेंडर वर्ग है। हमारी सरकार ने ट्रांसजेंडर साथियों के लिए कानून बनाने का काम किया है और जब पश्चिम की दुनिया के लोग ये सुनते हैं तो उनको भी गर्व होता है, जब भारत इतना प्रोग्रेसिव है, भारत की तरफ बड़े गर्व की नजर से देखा जाता है। हमने उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास शुरू किया है। आपने देखा होगा पद्मा अवार्ड में भी ट्रांसजेंडर को अवसर देने में हमारी सरकार आ गया है। आदरणीय सभापति जी, हमारे गुमंत जनजातीय समुदाय, हमारे गुमंत साथी, हमारे बंजारा परिवार, उनके लिए एक अलग कल्याण बोर्ड बनाया है ताकि उनकी आवश्यकताओं को हम एड्रेस कर सकें और उनको भी एक स्थायी, सुरक्षित और संभावनाओं वाला जीवन प्राप्त हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हम एक शब्द लगातार सुनते आए हैं, पीबीटीजी, पीबीटीजी, पीबीटीजी। हमारे जनजातीय समूह में ये सबसे पीछे रहा हुआ और आजादी के इतने सालों के बाद भी जिन्होंने उनको निकट से देखा होगा, पता चलता है कि कैसी हालत में जीते हैं। उनकी तरफ किसी ने नहीं देखा। हमने एक विशेष व्यवस्था की है और पीएम जनमन योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए, ये समुदाय बिखरा हुआ है, छोटी संख्या में है, वोट की उनकी ताकत नहीं है और यहां देश की परंपरा है जिसकी वोट की ताकत है उसी की चिंता करना,
लेकिन समाज के ऐसे अति पिछड़े लोगों की कोई चिंता नहीं करता था। हमने वो चिंता की है, क्योंकि हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में पारंपरिक पारिवारिक कौशल्य भारत की विकास यात्रा का और व्यवस्था का एक अंग रहा है। जो हमारा विश्वकर्मा समूह है, जिनके पास परंपरागत से हुनर है और जो समाज की आवश्यकताओं को पूरी करता है, लेकिन उनको कभी एड्रेस नहीं किया गया। हमने करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए की योजना से विश्वकर्मा समुदाय को आधुनिकता की तरफ ले जाना, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म आई। आदरणीय सभापति जी, गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया था, लेकिन मेरे रेहड़ी पटरी वालों को कभी बैंक के दरवाजे तक देखने की हिम्मत नहीं होती थी। हालत थी पहली बार कि मां अगर चली गई तो उसका कोई उपाय नहीं होता, फिर नहीं मिल सकती। ये भी बड़ी भावात्मकता से उन्होंने बताया था। विमेन हेल्थ, सैनिटेशन, वेलनेस पर हमने 10 वर्षों में एक प्रायोरिटी सेक्टर के लिए आपने काम किया है। आदरणीय सभापति जी, टॉयलेट हो, सैनिटरी पैड्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो, और इसका फायदा हमारे देश की माताओं बहनों को मिला है। आदरणीय सभापति जी, आरोग्य के साथ साथ महिलाएं आत्मनिर्भर बने, उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। बीते वर्षों में हमने जो 4 करोड़ घर बनाए हैं, उसमें से ज्यादातर घर हमने महिलाओं के नाम पर रखे। बैंकों में खाते खुलने से मुद्रा और सुकन्या समृद्धि जैसी योजना से आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ी है, भागीदारी भी बढ़ी है, और एक प्रकार से वो परिवार में भी अब निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनने लगी है। आदरणीय सभापति जी, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उससे जुड़ी 10 करोड़ बहनें, उनका आत्मविश्वास तो बढ़ा ही बढ़ा है, उनकी आय भी बढ़ी है। अभी तक 1 करोड़ बहनें जो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, छोटा छोटा गांव में कारोबार करती है, मिल करके करती है, किसी गांव वालों की भी नजर नहीं जाती इनकी तरफ। आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि उन्हीं में से 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी, और हम आने वाले समय में ये आंकड़ा 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की दिशा में बढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, सरकार का प्रयास है कि हर नए सेक्टर को हमारी महिलाएं लीड करें, वो अगुवाई करें, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन महिलाओं के नसीब बहुत बहुत आखिर में आती है। हमारी कोशिश है कि नई टेक्नोलॉजी का पहला अवसर हमारी महिलाओं के हाथ लगे और वे इसको और इसी के तहत नमो ड्रोन दीदी ये अभियान बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है, और आज गांव में किसानों को मदद करने का टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम गांव की हमारी महिलाएं कर रही है। और मैं जब उनसे बात कर रहा तो मुझे कह रही है, अरे साहब हम तो कभी साइकिल भी नहीं चलाना जानते थे, आपने हमें पायलट बना दिया है और पूरा गांव हमें पायलट दीदी के नाम से जानने लगा।